Good evening, everyone. A warm welcome to the today's webinar session. I hope you all are fine. So, as you know that we are conducting these webinars every week with new topics. So, today the topic is busy for accountant and CAs. So, thank you for joining with us, and thank you for taking a time to be here. Actually, as a professional who handle multiple clients to uploading their GST returns, monthly return filings, that is reconciliation works, audit reports, and financial plannings, etc., time is your most critical asset. So, as a CA or auditor, so the time is very important. And with constant changes in compliance rules and regulations, GST norms, the software that can automate and simplify the GST process and speed up their work becomes more easily and more easy. So that is the purpose of this webinar session. And today I'm going to help you. What are the features that Busy can help help that CAs and accountants can manage their work very smoothly. And you know that in GST aspect, the GST return filings is one of the important thing. Reconciliations and live data sync from GST portal. Different types of custom reports as well as GST reports are needed for the CAs. And how fast and how perfect reports that can be possible to get from Busy. And this can be today's session. I can help you to get that. And we will also address some of the common compliance related challenges for the CAs who they are facing in their business or in their work, so that how we can solve it. So that also I can help you. Please stay with us for the till end of this webinar. So if any questions or any queries, feel free to ask that questions in the chat box. I'll address your query and I can answer that in the end of the session. Okay, so let us begin. So you can see the image here. So just assume that he was a CA Mr. Ankit Kumarji, and he was our Busy customer and he was using the Busy. इन्होंने Busy यूज कर रहा है सो काफी लंबे समय से. जैसे he was managing more than 80 plus clients, filing their GST returns, reconciling the GST works, GST, and preparing the reports. And he was saving many more time after using the Busy. So इनका ये जो GST का काम पूरा Busy से चल रहा है. He seeks smarter ways to save time with Busy accounting software. ठीक है. So just you assume like this. So now अगर आपको भी ऐसा बिजी सॉफ्टवेयर यूज करके आपका टाइम को सेव करना है, सो एज लाइक CA मिस्टर अंकित कुमार जी, सो व्हाट आर द फॉर्मूला टू सेव योर टाइम सो दैट आई कैन हेल्प यू नाउ. सो वर्क स्मार्ट, अचीव मोर, एंड फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंट प्रैक्टिस हियर. ओके, सो मोस्टली आप सबको पता होगा, जैसे GST के अंदर मेन चीज होता है ऑडिट, है ना. सो व्हाट आर द की GST ऑडिट फीचर्स अवेलेबल इन बिजी. सो बिजी सॉफ्टवेयर में क्या क्या ऑडिट फीचर्स है. सो यहाँ पे ऑडिट ट्रायल एज पर MCA गाइडलाइंस ये बिजी में आपको मिल जाता है. सो MCA गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम ऑडिट ट्रायल समरी देख सकते हैं. व्हाट आर द चेंजेस हैज ओकर्ड ऑन द वाउचर, किसने किया है, कब किया है, क्या चेंजेस हुआ है, उस डेटा के अंदर क्या चेंजेस हुआ है, तो सारे हम जान सकते हैं. सो ये एक्चुअली ऑडिट के लिए काफी मदद करेगा एज पर द कंप्लायंस नॉर्म्स. सो ये बिजी के अंदर अवेलेबल है. फिर साथ साथ टैक्स क्लॉज 44 फॉर्म 3CD करके माना जाएगा. ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स क्लॉज 44 का, जैसे ये जो एक्सपेंडिचर्स होता है, एक्सपेंडिचर्स मतलब परचेस प्लस एक्सपेंसेस, इसको ऑडिट करना पड़ता है. सो हाउ मच इज द GST रजिस्टर्ड परचेस, अनरजिस्टर्ड परचेस, एंड एक्सेम्प्टेड गुड्स कितना हमने परचेस किया है, और GST गुड्स कितना परचेस किया है, और उसमें नॉन GST कितना किया, ये सारे हम उसको ऑडिट करना पड़ता है. ये सारे आपको टैक्स क्लॉज 44 के थ्रू जान सकते हैं. सो ये एक पावरफुल रिपोर्ट है और रिक्वायर्ड है. तो CS इसको लेके उनका काम और इजी कर सकते हैं, टाइम बच सकते हैं, और ये पूरा जानकारी एक ही स्क्रीन पे मिल जाएगा. ये बहुत बड़ी एडवांटेज है इसका. ठीक है. और GST का एक्सपेंसेस ऑडिट करना है. सो GST में जैसे एक्सपेंसेस होती है, काफी सारे होती है, उसमें कितना GST मैंने पे किया है, और उसमें एक्सपेंस GST अप्लीकेबल है क्या नहीं है, इनको मैं ऑडिट करना चाहता हूं अगर, तो ये भी बिजी में आपको रेडीमेड अवेलेबल है.
तो ये रिपोर्ट को हम देख सकते हैं। वैसे ही वाउचर ऑडिटिंग करना है विथ सम काइंड ऑफ नोट्स। वाउचर ऑडिटिंग क्यों करते हैं? जैसे कस्टमर्स है आपका और क्लाइंट है, उनका एंट्री होती है, तो उस एंट्री को हम देखते हैं ये सही है नहीं है। अगर इन्होंने सही किया है, क्लाइंट ने सही एंट्री किया है, उसको हम एक बार देख सकते हैं ऑडिट करके। उसके सामने मैं रिमार्क्स भी लिख सकता हूँ, उसके वाउचर के अंदर रिमार्क लिख सकता हूँ, क्योंकि वाउचर ऑडिटिंग के थ्रू आपको कस्टमर का वो जो एंट्री है उसको देख के सही करा सकता है। गलत है तो वहां पे रिमार्क लिख सकता है। ये सारे एक्चुअली आपको ऑडिटिंग के लिए हेल्प होता है। और साथ साथ एक और खास रिपोर्ट है ईवे बिल इनवॉइस का ऑडिट करने के लिए। अगर कस्टमर और अ क्लाइंट, उनका ईवे बिल है और इनवॉइसिंग जनरेशन है, उसमें कोई बिल होती है, उस बिल को ईवे बिल इनवॉइसिंग उन्होंने मिस कर दिया, नहीं करा है, तो ये भी हम समझ सकते हैं एक ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू, ताकि ये आपको दोबारा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ईवे बिल इनवॉइसिंग का ऑडिट रिपोर्ट। अब ये चीज हम एक बार गो थ्रू करके देख लेते हैं। सो ये अब हमारा बिजी सॉफ्टवेयर है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑडिट ट्रायल। सो ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट चेक लिस्ट करके होगा डिस्प्ले में, यहाँ पर मिलता है ऑडिट ट्रायल समरी। अब ये समरी में आपको एक एक यूजर का देखना है और सबका देखना है, किसने क्या किया है, किसने क्या एंट्री ऐड किया है, मॉडिफाई किया है, डिलीट किया है। और अगर आपको यहाँ पे अकाउंटिंग बुक्स का देखना है और इन्वेंट्री बुक का देखना है, ये अलग अलग भी देख सकते हो, एक एक करके भी देख सकते हो। मतलब एक एक करके लेके सेलेक्ट करके देख सकते हो विथ डेट रेंज के अकॉर्डिंग। अब ये रिपोर्ट के अंदर आपको यहाँ पे डेट लगाना है, फिर आपको ऑडिट ट्रायल के अंदर रिपोर्ट्स शो करेगा। फिलहाल इस कंपनी के बिना मैं एक और कंपनी है मेरे पास, इस कंपनी में दिखा देता हूं समरी रिपोर्ट। ये देख सकते हैं किस यूजर ने करा है, कब करा है, कितने बजे करा है और क्या किया है उन्होंने, किस वाउचर टाइप के अंदर इन्होंने चेंजेस करा है, विथ वैल्यू चेंजेस आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये इंडिकेट करेगा, रेड कलर का इंडिकेशन है अनअप्रूव्ड वाउचर। ये एक्चुअली अगर वाउचर अप्रूवल सिस्टम रहेगा तब ये रेड में दिखेगा, अदरवाइज ये नॉर्मल ब्लू में दिखेगा। ठीक है, ये अभी हो गया ऑडिट ट्रायल। लेकिन आपको एक वाउचर के अंदर मल्टीपल टाइम्स चेंजेस होती है ना, उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं देख लीजिए। तो अभी मैंने एक बिल नंबर यहाँ पे ओपन करता हूँ मॉडिफाई मोड पे। सो ये मेरा पुराना बिल है। तो इस बिल के अंदर मैं जाऊंगा और इसका क्वांटिटी मैंने 2 करके चेंज कर लेता हूँ। तो ये मेरा इनवॉइस नंबर है, मैं इस वाउचर को एक बार सेव कर लिया। रिमार्क्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे डिटेल्ड करके एक ऑप्शन है, डिटेल में मास्टर और वाउचर। सो दोनों हम यहाँ पे ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट पे देख सकते हैं, वाउचर और मास्टर। फिलहाल मैं एक बिल नंबर यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं। ये मेरा बिल नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक बार ऐड हुआ है, दूसरा बार मॉडिफाई हुआ है। अगर इसके ऊपर एक बार एंटर करिए तो कितनी बार यूजर ने चेंजेस किया है डेटा के अंदर, उतनी बार आपको वर्जन्स यहाँ पे दिखेगा। पहली बार किया तो वर्जन 1, दूसरा बार वर्जन 2, नेक्स्ट टाइम वर्जन 3, ऐसा करके कंटिन्यूअस आपको दिखते जाएगा। तो क्या चेंजेस हुआ है वो भी आप यहाँ पे रेड में इंडिकेट करके, मतलब रेड में इंडिकेट होता है, वो भी आप देख सकते हो क्या वैल्यू चेंजेस हुआ है उस वाउचर के अंदर, और रेड कलर में इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है टैक्स क्लॉज 44 रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट्स का एक खास ऑडिट रिपोर्ट है, यहां पर आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट्स, टैक्स क्लॉज 44 रिपोर्ट्स। सो ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस एंड परचेज, उसके रिलेटेड जानकारी हमारे टैक्स क्लॉज 44 पे दिखेगी। जीएसटी अप्लीकेबल, नॉन जीएसटी, नॉट अप्लीकेबल, साथ साथ टोटल अमाउंट एक्सेप्टेड कितनी है, कंपोजिशन कितनी है, रजिस्टर्ड कितनी है, टोटल पेमेंट कितनी किया है, सारा जानकारी एक ही स्क्रीन पे दिखेगा। अगर यहाँ पे एंटर करके हम डिटेल में भी जान सकते हो, डिटेल में भी व्यू कर सकते हैं। ऑल एंट्री को देखना तो ऑल एंट्रीज, तो सारे एंट्रियां आपके सामने दिख जाती है। और गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्टेड फ्रॉम जीएसटी,
अलग से देखना है तो अलग से देख सकते हैं, और अकाउंट लेजर यहाँ से ओपन करना तो अकाउंट लेजर ओपन कर सकते हैं। सो ओवरऑल आपको एक ही स्क्रीन के अंदर पूरा काम खत्म हो जाता है, मैक्सिमम टाइम आप सेव कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली आपका रिपोर्ट भी एक ही स्क्रीन में दिखेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखते हैं कि ई वे बिल इनवॉइस का ऑडिट रिपोर्ट। सो ई वे बिल इनवॉइस का ऑडिट रिपोर्ट है ना, कास रिपोर्ट है। सो ये रिपोर्ट आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे मिलेगी, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी, ई वे बिल इनवॉइसिंग मैनेजमेंट और ई वे बिल ऑडिट रिपोर्ट। अगर मैंने कोई बिल मिस किया है ई वे जनरेशन, तो वो जानकारी मेरे सामने आ जाता है। तो इतनी सारे बिल मैंने करा हूं लेकिन इस पे ई वे जनरेट नहीं हुआ है, तो ये जानकारी हमको यहाँ से देख सकते हैं। फिर ई इनवॉइस का ऑडिट रिपोर्ट भी यहाँ पे इसी तरीके से दिखेगा अगर कोई बिल मिस है तो। अगला है यहाँ पे वाउचर ऑडिट रिपोर्ट। वाउचर ऑडिटिंग एक यूटिलिटी है, ये हमारे जनरल सेटिंग्स के अंदर मिलेगा। सो ऑडिटर्स क्या करेंगे, ऑडिटर्स है ना, ऑडिटर्स क्लाइंट का डेटा ऑडिट करेगा। सो इसके लिए ये फीचर यूज करता है। यहाँ पर क्या होता है, एक बार ऑडिटर ऑडिट करेगा तो नेक्स्ट टाइम किसी यूजर जाके उस डेटा का मॉडिफाई नहीं कर सकता है। लेट्स से एग्जांपल, यहाँ पर मेरे एक सेल वाउचर है, सेल्स वाउचर को मैं मॉडिफाई करूंगा और ऑडिटर के लिए एक यूजर अकाउंट मैंने क्रिएट करा हूं, वो है ए करके। सो ए करके एक ऑडिटर का यूजर अकाउंट मैंने बनाया हूं। अब मैं इसको कॉन्फ़िगर सेव कर दिया। आगे मैं वापस नेक्स्ट यूजर को स्विच करता हूं, यूजर अकाउंट 1 पे स्विच करता हूं। अब यूजर अकाउंट 1 पे स्विच करके मैं यहां पर एक वाउचर एंट्री करूंगा। So next we will switch again to A user. A is the auditor. अब ऑडिटर के पास एक रिपोर्ट होती है डिस्प्ले में चेक लिस्ट करके, यहाँ पर वाउचर ऑडिट रिपोर्ट दिखेगी, ऑडिटेड वाउचर, अनऑडिटेड वाउचर। अब अनऑडिटेड वाउचर का काउंट आप यहाँ पर देख सकते हो, इतनी सारे वाउचर हैं, मतलब पुराना वाउचर भी यहाँ पे शो कर रहा है। अब इनमें से कोई वाउचर हम ऑडिट करना है तो एक बार ओपन करके चेक कर सकते हैं। अगर ये डेटा एंट्री सही किया है क्लाइंट, तो फिर उसको हम यहाँ पे F4 करेंगे, ओनली दिस वाउचर और ऑल वाउचर्स। सो अगर सब भी वाउचर यहाँ पर दिख रहा है, सबको एक साथ करना है तो एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो एक वाउचर को कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से ऑडिट करने के लिए आपको हेल्प होती है। फिर दोबारा दूसरा अकाउंट है 1 करके, वो अकाउंट से ये वाली वाउचर को मॉडिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वाउचर ऑडिटिंग फीचर इसलिए यूज होता है, अगर ऑडिटर और सीए एक बार वाउचर का ऑडिट करेगा, सो बुककीपिंग एंट्री को ऑडिट करेगा, तो दोबारा किसी दूसरे यूजर लॉगिन करके उस डेटा का मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे जीएसटी एक्सपेंस ऑडिट। सो जीएसटी एक्सपेंस ऑडिट का एक रिपोर्ट है जीएसटी रिपोर्ट्स के अंडर। यहाँ पर हमारे कितनी सारे एक्सपेंसेस हुई है वो जीएसटी नेचर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। सो यहाँ पर डेट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, प्लस जीएसटी के नेचर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बैंक चार्जेस ये एक तरीके से एक्सपेंसेस है, तो ये जीएसटी अप्लीकेबल है क्या, नहीं है, और जीएसटी नॉट अप्लीकेबल है क्या, और मैंने जीएसटी का नेचर क्या लिया है, और क्या अमाउंट मैंने यहाँ पे मतलब एक्सपेंसेस कितनी पे किया हूँ। तो ये सारी जानकारियां आपके सामने यहाँ पे एक ही स्क्रीन के अंदर मिल जाता है। ये जीएसटी के नेचर के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंसेस को जैसे ट्रैकिंग कर सकते हैं और उसको ऑडिट कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द ऑडिट रिपोर्ट्स। सो ये आपको रियली हेल्प करेगा ऑडिट करने के लिए, और इससे आपका टाइम बच जाती है। सो अगला पॉइंट है यहाँ पे, हाउ डज बिजी मैनेज जीएसटीएन एंड एचएसएन कोड्स। सो जीएसटीएन एचएसएन एक मेजर रोल प्ले करेगा जैसे जीएसटी के काम करने के लिए, क्योंकि क्लाइंट लोग, काफी सारे लोग जीएसटी का वैलिडेशंस नहीं करते हैं, मैन्युअली डेटा एंट्री करने के वक्त उन्होंने गलत कर लेगा और एचएसएन कोड प्रॉपर उन्होंने नहीं डालेगा, तो इस वजह से सीएज एंड ऑडिटर्स का टाइम वहाँ पे ज़्यादा यूटिलाइज होता है। इसको माइंड में रखते हुए बिजी की तरफ से आपको मल्टीपल जीएसटी एंड मल्टीपल एचएसएन का दोनों का वैलिडेशंस का प्रोविजन प्रोवाइड किया जाता है। ये अगर आपको एचएसएन का सर्च भी करना है, सर्च कर सकते हो, साथ साथ बल्क में पार्टी मास्टर भी बना सकते हो, सिंगल और बल्क दोनों है, और एचएसएन का समरी का रिपोर्ट भी आपको ले सकते हैं। सो एचएसएन समरी के थ्रू आपको जान सकते हैं कि किस किस आइटम के
मतलब कौन सी HSN का कितनी सेल्स हुआ है, तो ये समरी रिपोर्ट आपके सामने मिलेगा, तो ये भी रेफर कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मल्टीपल HSN एंड GSTN कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। सो लेट्स से एग्जांपल, अब मैं एक पार्टी क्रिएशन करनी है, तो मैं एज यूजुअल यहाँ से F4 कर सकता हूँ। F4 करके एक GST नंबर को स्पेसिफाई करूंगा। सो यहाँ पर उस पार्टी का पूरा डिटेल सामने आ जाता है, उसका कंपनी का नाम, उसका GST का, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ सप्लाई, सारी जानकारी सामने आ जाता है। लेकिन ये इंटरनेट कनेक्टेड रहनी चाहिए, तब भी ये काम करता है। और इसी के थ्रू आपको GST का फाइलिंग स्टेटस, मतलब उनका फाइलिंग टेबल भी जान सकते हैं, इन्होंने कब GSTR 1 भरी है, GSTR 3 भी कब फाइल किया है, और ये सब कुछ आपको सामने मिल जाएगा। सो कभी कभी क्या है ना, पोर्टल डाउन रहेगा, तब थोड़े से आपको ओपन होने में दिक्कत लगेगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक सेकेंड। सो आई कैन क्रिएट बाय हियर, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सर्वर डाउन है, माफी चाहूंगा, तो मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगा। अब देखिए, GST मिसलेनियस यूटिलिटी के अंदर आपको GST नंबर को बल्क में वैलिडेट करने के लिए ऑप्शंस है। सिंगल और मल्टीपल भी है, सिंगल भी है, मल्टीपल भी है। यहाँ पर जाएंगे और हमारे पास कितनी सारे पार्टी का लेजर बनी हुई है, उनका GST नंबर अगर राइट और रॉन्ग, सो आई कैन एबल टू सी इट बाय हियर, आई कैन एबल टू वैलिडेट फ्रॉम हियर। सो सेलेक्ट इट ऑल, देन यू कैन क्लिक दिस वैलिडेट बटन। तो वैलिडेट बटन पे क्लिक करते हुए यहाँ पर दिए हुए सारे पार्टी का GST नंबर्स एक साथ वैलिडेट हो जाता है। फिर अगर कोई गलती है तो हम उसको बाद में सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ से आपको काम हो जाता है, और एंटर करने से उस पार्टी का लेजर ओपन होगा और वहां पे जाके उस GST नंबर को सही करा सकता है, ठीक है। तो ये एक बल्क यूटिलिटी हम बिजी में प्रोवाइड किया हुआ है। और एक है HSN यूटिलिटी, जैसे बल्क और सिंगल में हम HSN कोड नंबर को भी वैलिडेट कर सकता है। अगर मेरे पास कितनी SKUs है, उस सबका, सभी प्रोडक्ट का SKUs को हम एक बार उसका HSN कोड को यहाँ पर वैलिडेट कर सकता है। इफ इन केस कोई HSN गलत है, तो वो हमको यहाँ पे इनवैलिड करके दिखेगी। सो देखिए, अभी मैंने वो जो GST नंबर का भी वैलिडेशन किया था ना, सिंगल GST नंबर, तो ये यहाँ पर आ रही है, उस कंपनी का नाम, लीगल नाम, सेंटर ऑफ जुरिडिक्शन, इनवॉइसिंग स्टेटस पूरा आ जाएगा। यहाँ से फाइलिंग टेबल भी जान सकता है, इन्होंने GSTR 1 कब भरा है, 3 भी कब भरा है, उसका डिटेल भी पता चलता है। अब ये देखिए, HSN कोड वैलिडेशन के बाद आपको सक्सेसफुल का मैसेज आता है। यहाँ पर आपको वैलिड है क्या, इनवैलिड है क्या करके दिखेगी। फिर सर्च करना है, तो यहाँ पर सर्चिंग का भी ऑप्शन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम एक HSN कोड नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज उसका नाम डाल के भी सर्च कर सकता है। जैसे एक नाम हमने पेन करके डालते हैं, तो पेन का HSN कोड यहाँ पर शो करेंगी। इस लिस्ट के अंदर आपको सही HSN कोड को सेलेक्ट करके वहां पे मास्टर में डालना पड़ेगा। तो ये HSN का एंड GST नंबर का है यूटिलिटी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ से बल्क में पार्टी भी क्रिएट कर सकता है। अगर हमारे एक्सेल के अंदर कस्टमर का GST नंबर है, तो सारे पार्टी का GST नंबर एक साथ कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे एक्सेल से कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर हमने पेस्ट करेंगे। बाद में पार्टी का ग्रुप सेलेक्ट करके सीधा हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे ना, तो पार्टी का नाम यहाँ पे वैलिडेट होता है। मतलब ये GST पोर्टल के साइट पे जाके डेटा लेके आता है, क्योंकि यहाँ पर API इंटीग्रेशन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ से वो GST नंबर को लेके जाके वहाँ पे सर्च करके हमको इंफॉर्मेशन दे देगा। सो ये एक्चुअली बल्क में पार्टी क्रिएशन हम बिजी से इस तरीके से कर सकते हैं, और सारे मास्टर्स एक साथ भी सेव हो जाएगा, सिंगल क्लिक पे सेव हो जाएगा। इससे आपका टाइम बच जाती है। बुक कीपिंग अगर आपको करना है पार्टी का, मतलब क्लाइंट का, तो एक सिंगल क्लिक पे आपका पूरा काम हो जाएगा, इससे टाइम काफी सेव हो जाता है। फिर HSN वाइज समरी रिपोर्ट अगर आपको चाहिए, तो ये यहाँ से मिलेगा, बिजी में डिस्प्ले से मिलेगा। GST रिपोर्ट्स में GST अदर रिपोर्ट करके होगी, उसमें HSN वाइज समरी इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों आप देख सकते हो। सो डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको HSN का रिपोर्ट मिलेगी, किस HSN का सेल हुआ है,
और कितनी क्वांटिटी हुआ है, कितनी वैल्यू का हुआ है, उसका जीएसटी ब्रेकअप वैल्यू। अगर इसको एक्सपोर्ट करनी हो तो एक्सेल, गूगल ड्राइव, पीडीएफ के थ्रू आपको एक्सपोर्ट करके डेटा को ले सकते हो। हाउ डज बिजी रिड्यूस टाइम स्पेंट ऑन जीएसटी रिटर्न फाइलिंग? सो बिजी आपको बिल्कुल हेल्प करता है टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि बिजी में वन क्लिक जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का प्रोविजन है। क्लाइंट और सीए और ऑडिटर एक सिंगल क्लिक में डेटा को जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर सकता है। उसको हम कहते हैं डायरेक्ट अपलोड। यदि अगर आपका क्लाइंट बिजी यूज करता है, आप भी बिजी यूज करते हो, नहीं तो आप चाहते हो क्लाइंट से डेटा लेना है, जेसन के थ्रू भी डेटा ले सकते हो क्लाइंट के सॉफ्टवेयर से, बिजी से, और जेसन के थ्रू ही फाइल लेके आप मैनुअल अपलोड भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको बिजी के अंदर से ही करना हो तो एरर चेकिंग टूल दे दिया जाएगा। एरर चेकिंग टूल क्या करता है, अगर आपके डेटा एंट्री में कोई एरर है, वैल्यू कोई एरर है, वैल्यू मिसमैच है, कुछ मतलब एचएसएन के रिलेटेड कोई एरर है, नहीं तो कोई ह्यूमन एरर है, कोई भी है, तो वो डिटेक्ट करेगा, फिर हमको बता देगा कि यहाँ पे एरर है करके, फिर वो हम सही कराना पड़ेगा। ठीक है, करके हम अपलोड करनी है ताकि हमारा डेटा अपलोड हो जाएगी। लेकिन ये अपलोडिंग के टाइम पे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जैसे क्लाइंट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को ऑथेंटिकेट करेंगे तब भी जाके वो अपलोड होता है। मतलब एक इसमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया जाएगी। तो ये चीज आपको यहाँ पर डिस्प्ले में मिलेगी। डिस्प्ले के अंदर जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिटर्न्स, GSTR1 ई रिटर्न। सो डायरेक्ट अपलोड एक सिंगल क्लिक में हो जाएगी। यहाँ पे हम अगर आईएफएफ भी भरना हो तो आईएफएफ भर के उसको स्किप भी कर सकते हो। अगर हमने क्वार्टरली GSTR1 भरते हैं, आईएफएफ मंथली भरते हैं, तो आईएफएफ का डेटा ऑलरेडी भर दिया है, तो हमने दोनों मंथ है ना, पहले एंड दूसरा मंथ को स्किप करके GSTR1 को अपलोड कर सकता है। अगर मैं GSTR1 फाइलर हूँ, क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं करता हूँ, तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे स्किप करके एक ऑप्शन दिखाया था, ये यूज करना है, नहीं तो नन करके यूज करना है। मैंने बताया था एरर चेकिंग टूल, तो देख सकते हैं यहाँ पे एरर चेकिंग टूल आपको मिलेगी। अगर कोई HSN ब्लैंक है तो HSN ब्लैंक करके एरर आएगा, यहाँ से उसको ओपन करके सही कराना पड़ेगा। और ट्रांजैक्शन में कोई इनवैलिड जीएसटी रेट हमने अप्लाई किया है, वो भी एरर आपको यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाता है। फाइनली प्रोसीड करते हैं ताकि ओटीपी आएगा, ओटीपी से हमारा फाइलिंग मतलब डेटा अपलोड हो जाएगी। सबमिशन तो हम पोर्टल में लॉगिन करके सबमिशन करना पड़ेगा। GSTR1 के अलावा यहाँ से आपको आईएफएफ रिटर्न भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अपलोड, जेसन, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। अगर जेसन एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ पे सीधा जेसन फाइल बनेगी, कौन सी मंथ का फाइल एक्सपोर्ट करनी है उस मंथ को लेके हम फाइल को बना सकते हैं। ये फाइल जनरेट होता है, इसको लेके हम अपलोड कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। ये है एक्चुअली बिजी के तरफ से आपको टाइम सेव करने के लिए तरीका। जैसे अगर आप जीएसटी रिटर्न क्लाइंट का करना है, सॉफ्टवेयर बिजी से कर सकते हो डायरेक्टली, सो दैट आपको टाइम बचेगा। नंबर ऑफ हावर्स आपको वहां पे टाइम बच जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट आर द स्पेशल जीएसटी रिटर्न्स अवेलेबल इन बिजी। बिजी जैसे आपको काफी सारे रिटर्न्स प्रोवाइड करता है, GSTR1 आईएफएफ रिटर्न, 3B, GSTR9 HSN समरी, फिर GSTR4 कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए, ये सारे तो रेगुलर टैक्स पेयर के लिए था। GSTR4 कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए, 9A भी हम अपलोड कर सकते हैं एनुअल रिटर्न, फिर GSTR6 ISD, GSTR7 TDS ऑन स्क्रैप, जैसे वो जो TDS टैन बेस्ड पैन नंबर GST नंबर होगा उनके लिए GSTR7 भी भर सकते हैं, ITC4 फॉर जॉब वर्क होल्डर। तो ये सब कुछ बिजी के अंदर मिल जाएगा। तो ये सारे रिटर्न्स हमारे डिस्प्ले में मिलती है। अगर चाहे तो आपको स्क्रीन व्यू करना है तो स्क्रीन पे रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। हर एक टेबल नंबर के अकॉर्डिंग उसका वैल्यूज यहाँ पे आपको शो करेगा, 4A, 4B, 5A, 6A, 6B, 6C, पूरा वैल्यू यहाँ पे शो करेगी। इसके ऊपर एंटर करके भी हम ड्रिल डाउन कर सकते हैं, अंदर जाके उस पर कोई अगर डेटा को करेक्शन करना है तो कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन रिपोर्ट है, यहाँ पे F2 करके डेट चेंज होगा, और यहाँ पे फिल्टर्स कर सकते हैं। ऊपर आपको फिल्टर्स का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है, सर्च का ऑप्शन है। ये सब कुछ यहाँ से हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आपको ई रिटर्न करना हो तो नीचे दिए गए ऑप्शन पे आना चाहिए। यहाँ से तो ये सारे अभी
डिस्प्ले रिपोर्ट है व्यू करने के लिए, ये सारे ई रिटर्न है। कहाँ पे ई रिटर्न करके लिखा है, ये यूज करके हमने ई रिटर्न कर सकते हैं। 1 ई रिटर्न, 2 ई रिटर्न और 3B ई रिटर्न, ITC 4 ई रिटर्न, 6 ई रिटर्न, GSTR 9 HSN समरी ई रिटर्न। सो यहाँ से रिफंड स्टेटमेंट का भी ई रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो इतनी सारी रिटर्न्स दिया हुआ है। अब GSTR 7 यहाँ पे फिलहाल एनेबल नहीं है। सो GSTR 7 क्या होता है, अगर हमने टैन बेस्ड GST नंबर होल्डर है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होती है TDS TCS के अंदर, सॉरी GST एंड वैट के अंदर, टैक्स डिडक्टर करके यस करेंगे, फिर यहाँ पे GST नंबर, टैन बेस्ड GST नंबर को एंटर करते हैं, तब भी हमारे डिस्प्ले के अंदर GSTR 7 करके GST का रिटर्न आपको दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा। सो ये आपको यहाँ से GSTR 7 अपलोडिंग कर सकते हैं। सो ओवरऑल कहना हो तो बिजी में आपको स्क्रीन का रिपोर्ट भी है, ई रिटर्न का भी काम आप कर सकते हैं। सो डायरेक्ट अपलोड यहाँ से करिए ताकि आपका टाइम काफी बच जाती है। एरर चेकिंग टूल भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। सो नेक्स्ट है व्हाट GST रिकंसिलेशन फीचर डज बिजी ऑफर। सो GST रिकंसिलेशन का काम सबको जैसे काफी मेहनत का काम है, क्योंकि उसमें GST का बैलेंस, वो जो वैल्यू आपके मतलब सॉफ्टवेयर के वैल्यू के साथ मैच नहीं करता है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको सही कराने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो लेकिन अगर BC सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, काफ़ी बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको डेटा डाउनलोडिंग ऑटो हो जाता है, प्लस आपका रिकंसाइलेशन भी आपको मतलब ऑटो डिटेक्ट होता है, डेटा का इनवैलिड डेटा का डिटेक्शन ऑटो हो जाता है। तो ये दोनों काम आपको यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें है ना GSTR 1, 2A, 2B, 3B ये सब कुछ ऑटो डाउनलोडिंग हो जाएगा। पहले तो एक एक करके डाउनलोड करना था, अभी वेरी रिसेंट रिलीज में हमने ये भी इंट्रोड्यूस किया है कि एक ही सिंगल क्लिक के अंदर हमारा पूरा GSTR 1 हो, 2 हो, 2A हो, 2B हो, 3B हो, पोर्टल का डेटा बिजी में ऑटो डाउनलोड हो जाएगा 1 सिंगल क्लिक के अंदर। साथ साथ रिकंसाइलेशन भी यहाँ पे हो जाती है। अब इसको एक बार हम देख लेते हैं। सो GST पोर्टल के डेटा रिकंसाइल भी होगा, साथ साथ RCM का भी यहाँ पे जैसे रिकंसाइल कर सकते हैं। RCM मैंने कितना पे किया हो और कितना क्लेम किया हूँ, ये भी यहाँ पे जैसे रिकंसाइलेशन कर सकता हूँ। प्लस ITC क्लेम कितना किया हूँ, ITC यूटिलाइज कैसे कितना किया हूँ, ये भी मैं रिकंसाइल कर सकता हूँ। सो ये चीज अगर आपको यहाँ से मिलेगी, पहले डेटा को डाउनलोड करना पड़ता है GST मिसलेनियस यूटिलिटीज के थ्रू, डाउनलोड GSTR जेसन डेटा। अगर सिर्फ GSTR 1 करना है तो सीधा हम GSTR 1 यहाँ पर कर सकते हैं, ऑटो डाउनलोडिंग प्रोविजन है। तो मंथ ऑन मंथ यहाँ पे मंथ के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। फिर अगर GSTR 1A करना है अमेंड, तो GSTR 1A यहाँ से कर सकता हूँ। 2A, 2B, 3B सब कुछ होगा। अगर एक सिंगल क्लिक पे पूरा होना चाहिए तो यहाँ पर ऑल डाउनलोड करके, डाउनलोड ऑल रिटर्न्स, हर मंथ का 1 साल का पूरा रिटर्न्स यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी 1 सिंगल क्लिक पे। ठीक है, सो ये एक सिंगल क्लिक पे सारे डाउनलोड हो जाएंगे। अगर आपको एक एक करके डाउनलोड करना है तो GSTR 1 कर सकता है अलग से, 2A अलग से कर सकता है, ठीक है, ये भी कर सकता है। सो मैं अभी फिलहाल ये देखिए डाउनलोड कर रहा हूँ। एक OTP आता है, उस OTP नंबर को ढालेंगे तब भी जाके डाउनलोड होती है, विदाउट OTP डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, OTP तो वैलिडिटी होगा, OTP का एक्सपायरी होता है, जैसे 30 डेज का कुछ वैलिडिटी रहेगा, फिर उसके बाद वो आपको दोबारा OTP डालना पड़ेगा। तो ये है डाउनलोड ऑल GST रिटर्न्स। अब तो डाउनलोड हो गया डेटा, लेकिन ये डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, बिजी में स्टोर नहीं होता, वो बैकएंड पे स्टोर होता है। बिजी के डेटा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, सिर्फ वो डेटा पोर्टल से यहाँ पर डाउनलोड होगी। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है रिकंसाइल, नेक्स्ट स्टेप है। तो रिकंसाइल में हम इंडिविजुअल रिकंसाइल करना पड़ेगा। जैसे GSTR 1 करना है तो यहाँ पर जाके मंथ लेके काफ़ी सारे यहाँ पे फिल्टर्स दिया गया है। सो आपको अगर मिसमैच, यहाँ पे चेक फॉर मिसमैच टिल इनवॉइस लेवल आपको चाहिए तो यस करिए। सो यस और नो काफ़ी सारे फिल्टर हैं, तो आपके उसको पढ़ने से पता चलता है। फिर इनकेस हमारे डेटा में कोई एरर है, मतलब मिसमैच है, तो ये रेड में इंडिकेट करेगा। सो ये रेड में इंडिकेट करेगा। यहाँ पर बिजी में वैल्यू अभी देखिए 1,32,45,373, इसमें 1,54,54 lakhs
77,345। तो ये डिफरेंस है करके आ रहा है B2B के अंदर। अब यहाँ से मिसमैच ओनली करके देखना हो तो मिसमैच ओनली करके हम देख सकते हैं, सिर्फ मिसमैचेस दिखेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से GSTR1 रिकंसाइलेशन, 3B रिकंसाइलेशन, 2A रिकंसाइलेशन, वाउचर वाइज पार्टी वाइज दोनों है। सो यहाँ पे 2A 2B दोनों कर सकता है। फिर साथ साथ एक और है यहाँ पे, टेबल नंबर 8A ऑफ GSTR9 पार्टी वाइज, टेबल नंबर 8A ऑफ GSTR9 वाउचर वाइज। तो ये भी आपको हेल्प करेगा जैसे एनुअल रिटर्न के टाइम पे रिकंसाइल करने के लिए, जैसे बिजी में क्या वैल्यू है, GSTR9 में क्या वैल्यू है, वो समझ सकते हैं। अगर यहाँ से एंटर करके बिजी डेटा को अलग से देखना तो बिजी डेटा देख सकते हैं। ये बिजी का डेटा है, एक कंपैरेटिव डेटा है। अगर आपको सिर्फ मिसमैच को देखना है तो मिसमैच को देख सकता है। तो ये ओवरऑल आपको एक एक्सपीरियंस ऐसा मिलेगा कि एक ही सिंगल स्क्रीन के अंदर आपका पूरा रिकंसाइलेशन का काम हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, क्योंकि एक सिंगल क्लिक पे डेटा डाउनलोड होगा प्लस आपका रिकंसाइलेशन का रिपोर्ट रेडी हो जाएगा। तो साथ साथ यहाँ पे GSTR 2A 2B ये सभी कर सकते हैं। पार्टी वाइज करना हो पार्टी वाइज करिए, वाउचर वाइज करना है वाउचर वाइज करिए। सही वैल्यू तो ब्लू में आएगी, इनकरेक्ट वैल्यू तो रेड में आएगी। फिर कंपेयर का रिपोर्ट भी है, सेल्स GSTR1 GSTR3B को कंपेयर कर सकता हूं। ये जो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर मेरा बुक्स का वैल्यू इतने हैं, GSTR1 का वैल्यू इतनी है, 3B की इतनी है, डिफरेंस इतनी है, 1 में इतनी डिफरेंस है, 3B में इतनी डिफरेंस है। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको यहाँ से पता चलता है, और ये आपको ओपन करके बिल को भी सही करवा सकते हो बाद में। साथ साथ परचेस अलॉन्ग विथ 3B एंड 2A के साथ कंपेयर कर सकता है। परचेस को 2A एंड 3B के साथ कंपेयर भी कर सकता है। तो यहाँ पे बुक्स का डेटा, 3B का डेटा, 2A का डेटा, डिफरेंसेस हो तो यहाँ पे डिफरेंसेस दिखेगी। सो ये सारे यहाँ से हो जाएगा। अगर सिर्फ हमको पोर्टल के थ्रू रिकंसाइल भी करना है वो आगे मैं बताऊंगा। अभी तो मैंने बताया GST पोर्टल वर्सेस बुक्स डेटा। तो ये यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शंस और यूटिलिटी यू कैन से उसको प्रोवाइड किया गया है। फिर ये चीजों को मैंने बता दूंगा, जैसे RCM पेड वर्सेस RCM क्लेम्ड। सो यहाँ पर अदर रिकंसाइलेशन करके है। सो अदर रिकंसाइलेशन में ये भी कर सकते हैं कि RCM मैंने कितना पेमेंट गवर्नमेंट को पे किया हूँ और कितना मैंने क्लेम किया हूँ। सो RCM मैंने कितना पे किया हूँ और कितना क्लेम किया हूँ। तो ये चीज भी यहाँ से पता चलता है, और कोई डिफरेंसेस होगा अगर तो डिफरेंस में दिखेगी। फिर ITC कितना क्लेम किया और कितनी यूटिलाइजेशन किया हुआ है। सो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ITC मेरा इतनी है, अब मैं यूटिलाइज नहीं किया हूँ। वो जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट लेजर बैलेंस है उस पर कितना मैंने क्लेम किया हूँ, वो बैलेंसेस वहां पे है क्या, तो इसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट बन जाती है। मतलब ये पोर्टल से डायरेक्टली बनेगी। सो नेक्स्ट, अगर आपका एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये होगा कि इंटीग्रेशन बिटवीन डिजिटल सिग्नेचर, इंटीग्रेशन बिटवीन GSPs। जैसे आपका सवाल होगा कि बिजी इंटीग्रेशन विथ ईवेबल इनवॉइसेस एंड डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा बिजी में, क्योंकि बिजी की तरफ से आपको ड्यूअल GSP रजिस्ट्रेशन मिलता है वेबटेल एंड पिनाकल के तरफ से। इन दोनों का GSP का इंटीग्रेशन बिजी से होगा। और अगर एक का सर्वर डाउन रहती है तो दूसरे सर्वर से इनवॉइसिंग, ईवेबल और रिकंसाइलेशन और डेटा डाउनलोडिंग कोई भी आपको करना है तो दूसरा सर्वर से हो जाएगी। सो अगर कोई एक सर्वर वेबटेल नहीं चल रहा है तो पिनाकल से बनेगी, फिनाकल चल रहा है तो वेबटेल से बनेगी, वाइस वर्सा। और साथ साथ डिजिटल सिग्नेचर का टोकन भी कनेक्ट कर सकता है। यह जो अगर आपको बिल पे प्रिंट करनी है, कोई एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कर, इनवॉइस को प्रिंट करनी है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। और साथ साथ GST का काम करने के लिए, वो जो GST अपलोडिंग के समय पे GST सिग्नेचर को, डिजिटल सिग्नेचर को वैलिडेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। बिजी के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, कोई कंपनी का डिजिटल सिग्नेचर भी चलेगा बिजी में। ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई सिग्नेचर को भी कनेक्ट कर सकता है और उसको हम GST के काम के लिए, सिग्नेचर वैलिडेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिजी में आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, GST एंड वैट के अंदर ये जो ईवेबल रिक्वायर्ड, इनवॉइसिंग रिक्वायर्ड सेटिंग्स होती है उसमें GSP का क्रेडेंशियल हम सेव करना पड़ता है। ये जो यूजर ID एंड पासवर्ड होगा ना, उसको सेव करके
रखना पड़ेगा, तब भी हमारी ई-वे बिल इनवॉइसेस बिजी से जनरेट हो जाता है। और अगर डिजिटल सिग्नेचर के देखते हैं तो ये हमारी जर्नल टैब के अंदर मिलेगा, वहां से डिजिटल सिग्नेचर फीचर को एनेबल करेंगे। सो देन यू कैन सेलेक्ट द बिजी, हियर यू कैन सेलेक्ट द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। वो जो हमने टोकन कनेक्ट किया हुआ है उस टोकन का सिग्नेचर सर्टिफिकेट आएगा, उसको सेलेक्ट करके पासवर्ड डाल के सेव करना है, तभी जाके वो हमारी डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। आगे आपको जीएसटी के फाइलिंग प्रोसेस के अंदर भी अगर रिपोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट करते हो तब भी आपको ये डिजिटल सिग्नेचर्स प्रिंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट, हाउ अबाउट आरसीएम आईटीसी रिवर्सल जीएसटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, सपोर्ट होगा क्या बिजी में? सो ऑफ कोर्स ये सपोर्ट होता है। सो पोस्टिंग ऑफ कंसोलिडेटेड आरसीएम एंट्रीज ये ऑटोमेटिक हो जाएगी बिजी से। साथ साथ बिल वाइज आईटीसी रिवर्सल भी हम देख सकते हैं कितनी बिल हमारी रिवर्सल के लिए है आफ्टर 180 डेज, और पोस्टिंग ऑफ टैक्सेस अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट, सो ये भी हमें बिजी से कर सकते हैं। सो आरसीएम के लिए जैसे यहाँ पर ये यूटिलिटी प्रोवाइड किया गया है, अगर कोई हमारी ट्रांजैक्शन हुई है तो उसमें कोई आरसीएम हमको क्लेम करना हो तो उसका कंसोलिडेट आरसीएम पेएबल वाउचर, मतलब जर्नल वाउचर, हम यहाँ से मंथली बेसिस और डेली बेसिस पे पोस्टिंग कर सकता है। सो ये क्या होता है, मंथ ऑन मंथ आपको और डेली वाइज आपको ऑटो पोस्टिंग हो जाएगा। फिलहाल कोई यहाँ पे वाउचर नहीं है। यहाँ से मैं एक और कंपनी में जाऊंगा। सो ये मेरा कंपनी है, मंथली बेसिस। अब ये देख सकते हैं हमारी आरसीएम का पेएबल डेली बेसिस पे इतनी है, अगर मंथली बेसिस पे कितनी है एक बार देख लेते हैं अप्रैल मंथ पे। सो ये सारे हमारे आरसीएम का लायबिलिटी है। सो लायबिलिटी है तो यहाँ से F4 करके एक जर्नल पास कर सकते हैं। सो सीधा हमारी एक जर्नल पास हो जाएगा कंसोलिडेट आरसीएम पेएबल का, और यहाँ से सेल्फ इनवॉइस भी पोस्टिंग कर सकता है, सेल्फ इनवॉइसिंग, सेल्फ इनवॉइस का प्रिंट आउट भी ले सकता है, प्रिंट टैक्स इनवॉइस ऑफ आरसीएम। सो अभी तो लायबिलिटी पोस्टिंग हो गई, तो ये हमारी यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखेगा। डिस्प्ले के अंदर जीएसटी समरी में आरसीएम का वैल्यू शो करेगा, आउटपुट जीएसटी ऑन आरसीएम। अब ये आरसीएम का पेमेंट यहाँ से F4 करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो F4 करके आरसीएम का पेमेंट यहाँ से पोस्टिंग कर सकता है, उसके लिए भी एक जेबी ऑटो पोस्टिंग हो जाएगी। सो बैंक का नाम लेके हमने जेबी पास कर दिया। फिर ये जेबी के अंदर हमने ये बता सकते हैं कि हमारी चलन नंबर, डीडी नंबर और बैंक का नाम, डेट, बैंक का कोड, पूरा जानकारियां हमारे फिल करके स्टोर कर सकते हैं। यह भी हमारे जीएसटी का मतलब आरसीएम का पेमेंट इस तरीके से पोस्टिंग होगी। अगर इफ इन केस आरसीएम को हम रेगुलर टैक्स के साथ एडजस्ट कराना हो तो आरसीएम वैल्यू हम अगर है आरसीएम लायबिलिटी है उसको रेगुलर टैक्स के साथ यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए भी एक जर्नल पास कर सकते हैं। ये भी वन क्लिक सॉल्यूशन है, जस्ट F4 करेंगे फिर एक जर्नल पास करेंगे। सो जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री करके यहाँ पे आरसीएम टू रेगुलर एडजस्टमेंट करके जीएसटी के टाइप के अंदर एक जेबी पास हो जाएगी। ये एक्चुअली वन क्लिक सॉल्यूशन है आरसीएम का एडजस्टमेंट के लिए। फिर वैसे अगर हम एडवांस ऑन रिसिप्ट का यूज करना हो तो बिजी में वो भी हो पाएगा। टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट करके ये फीचर को यस करना है। फिर अगर हमने कोई रिसिप्ट एंट्री करते हैं वहां पे कोई एडवांस आएगा तो एडवांस के केस में 18% ऑफ जीएसटी अप्लीकेबल हो जाती है। फिर इसका कंसर्न रिपोर्ट यहां से मिलेगा, चेक और पोस्ट टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट। सो इसका टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट का एक जेबी हम यहाँ पे F4 करके पास कर सकते हैं। अभी फिलहाल एंट्री नहीं है, अगर एक एंट्री करके देखेंगे यहाँ पे जीएसटी नेचर एडवांस रिसिप्ट है। ये देख सकते हैं रेफरेंस क्रिएशंस का विंडो आएगा, उसमें जीएसटी रेट बता के हमने जेबी पास कर दिया। फिर ये कंसोलिडेट मतलब पोस्ट टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट का जर्नल्स यहाँ पे F4 करके पास कर सकता है। ये है टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट का जर्नल।
फिर ये हमारी जीएसटी का समरी रिपोर्ट भी यहाँ पे शो करना शुरू करेगा। ट्रैक आउटपुट जीएसटी ऑन एडवांस, यहाँ पे वो वैल्यू शो करेगा। साथ साथ यहाँ पे बिल वाइज आईटीसी रिवर्सल का रिपोर्ट भी दिया हुआ है अदर रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पर जाके हम देख सकते हैं कि 180 डेज के बाद अगर कोई आउटस्टैंडिंग मतलब अगर कोई बिल है क्या रिवर्सल करने के लिए, अगर होगा तो उसमें कितनी परसेंट का इंटरेस्ट लागू होना चाहिए, 5%, 10% का इंटरेस्ट लागू होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये जो बिल वाइज आईटीसी रिवर्सल रिपोर्ट दिखना शुरू करेगा। यहाँ पे ये जो डिटेल मिलेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के साथ साथ ये शो करेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डज आईएमएस ऑटोमेट इन बिजी। सो आईएमएस काफी सिंपल है बिजी में। सो विथ एक सिंगल क्लिक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, इससे आपका टाइम बच जाती है। सो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आप देख सकते हो। सो अभी मैंने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का स्क्रीन पे हूँ, डैशबोर्ड पे हूँ। तो डायरेक्टली मैं इसको डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, रीडाउनलोड कर भी सकता है। डाउनलोड के बाद डेटा आके हम हमारे पोर्टल से यहाँ पे आईएमएस पोर्टल से यहाँ पे सेव हो जाएगी। फिर आके हमने यहाँ से F4 करेंगे, फिर एक्सेप्शन रिजेक्शन करेंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग करेंगे। अगर पेंडिंग हो तो पेंडिंग बता देंगे, एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट बता देंगे। अगर यहाँ से आपको F6 करेंगे तो F6 से आपको पता चलेगा कि आईएमएस का समरी। सो B2B का इनवॉइसेस कितना आपका नो एक्शन में है, कितनी एक्सेप्टेड है, कितनी रिजेक्टेड है, कितनी पेंडिंग है। वैसे ही B2B का इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट पूरा दिखेगी। तो वन क्लिक सॉल्यूशन है। पूरा एक्सेप्ट रिजेक्शन करने के बाद हम यहाँ से डायरेक्टली डेटा को अपलोड भी कर सकता है। सो यहाँ से डेटा दोबारा आईएमएस पोर्टल पे चला जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमारी जीएसटीआर 2B भी बन जाती है। यहाँ से जीएसटीआर 2B भी बना सकता है। तो ये एक सिंगल स्क्रीन के अंदर आपका टाइम सेव होता है, प्रॉपर एक्यूरेसी होता है, और आपको यहाँ से पूरा जानकारी एक ही स्क्रीन में मिलेगा। मतलब अलग अलग स्क्रीन में जाके मल्टीपल टास्किंग नहीं करेंगे, इससे आपका टाइम सेव होती है। नीचे आपको समरी भी दिखेगी, इसका वैल्यू कितना है, सीजीएसटी का वैल्यू कितना है, एसजीएसटी का कितना है, पूरा जानकारी यहाँ से पता चलता है। वन क्लिक डाउनलोड, अपलोड आईएमएस डेटा, अपडेट आईएमएस स्टेटस, जनरेट जीएसटीआर 2B एंड व्यू आईएमएस समरी। सो हाउ डज बिजी मैनेज जीएसटी लेजर बैलेंस। सो इफ इन केस आपको जैसे लेजर बैलेंस देखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैश क्रेडिट लेजर, कैश क्रेडिट लेजर लाइव बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, लायबिलिटी रजिस्टर, और क्रेडिट रिवर्सल रिक्लेम, जैसे बिल वाइज आईटीसी रिवर्सल मैंने बताया था, उसका कोई बिल अगर रिवर्स होता है तो उसको रिवर्सल वो जाके लेजर में से होता है, क्रेडिट लेजर में। तो इन चीज़ों को आपको एक सिंगल क्लिक में आप देख सकते हो। मतलब इसमें लाइव डेटा आपको मिल जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी लेजर करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको कैश और क्रेडिट लेजर लाइव बैलेंसेस देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन एक ओटीपी डालना पड़ती है, क्योंकि लाइव देखने के लिए एक ओटीपी का ऑथेंटिकेशन चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ से दिखेगी। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स कैश क्रेडिट लेजर यहाँ से दिख जाती है। लायबिलिटी रजिस्टर, क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट भी यहाँ से आपको देख सकते हैं। तो लेकिन आपको ओटीपी वैलिडेशन है, ओटीपी डालने के बाद ही वो आपको दिखेगा। पोर्टल में जाके हम देखना जरूरी नहीं है, पोर्टल को लॉगिन करने का जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल आपको सॉफ्टवेयर के अंदर से ही हो जाएगी। ठीक है। व्हाट आईटीसी मैनेजमेंट फीचर डज बिजी ऑफर फॉर सीएस। सो आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्लेम करना है मंथ ऑन मंथ, तो वहाँ पे आईटीसी का लॉस नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए बिजी में क्या सुविधा है आप देख सकते हैं। मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर 2A2B, ये जो हम कर सकते हैं, 2A2B का स्टेटमेंट को पोर्टल से डाउनलोड करेंगे, ऑटो डाउनलोड हो जाएगी। आगे हम उसको लेके मंथली आईटीसी टैगिंग स्टेटस अपडेट कर सकता है। सो इधर इट इज पेंडिंग, क्लेम हुआ है, वो स्टेटस अपडेट कर सकता है। अगर हम आईएमएस यूज करते हैं तो आईएमएस के थ्रू भी हमारी आईटीसी का स्टेटस अपडेट हो जाएगा। जैसे आईएमएस के थ्रू हमने जैसे एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं, तब ऑटोमेटिकली आईटीसी का स्टेटस वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। और इसका रजिस्टर भी अवेलेबल है, आईटीसी का रजिस्टर और आरसीएम का पेड वर्सेस आरसीएम क्लेम, ये जो आपको आईटीसी के लिए ये भी यूज होता है, ये भी आप रेफर कर सकते हो। तो अगर इन चीजों को लेके आईटीसी का
एक और है आईटीसी क्लेम्ड वर्सेस आईटीसी यूटिलाइजेशन, ये पहले हम डिस्कस किया था। तो ये आपको आईटीसी क्लेम करने के लिए इन चीजों को लेके आप मैनेज कर सकते हो, प्रॉपर आईटीसी को अवेल कर सकते हैं। तो एक बार हम देख लेंगे इसको क्या है कैसे है करके। तो मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर 2A अगर करना है तो यहाँ से पार्टी वाइज आइटम डेट वाइज कर सकते हो। तो पार्टी वाइज करना हो तो यहाँ पे पहले मंथ लेनी है, फ्रॉम मंथ टू मंथ लेनी है, फिर ओके करेंगे। ये देख सकते हैं इतनी सारी एंट्रियां हैं। अगर यहाँ से स्ट्रेट अवे आपको F6 करेंगे ना तो स्टेटस दिखेगी। सो स्टेटस में ये पता चलेगा कि जीएसटीआर 2A के अंदर क्या स्टेटस है, 2B में क्या स्टेटस है, आईटीसी में क्या स्टेटस है, फाइलिंग स्टेटस क्या है। मतलब ओवरऑल समरी आपका इनवॉइस का, वो जो परचेज इनवॉइस का समरी यहाँ पे शो करेगा। और अगर F4 इसको करते हैं तो F4 करने से इसका स्टेटस बता सकते हैं, क्लेम है क्या, आईटीसी नहीं है क्या, आईटीसी नन है क्या, रिस्ट्रिक्टेड है क्या, नॉट टू बी क्लेम्ड है क्या, इन चीज़ों को बता सकते हैं। और मैंने आईएमएस के रिकंसाइलेशन दिखाया था ना, उस आईएमएस रिकंसाइलेशन के अंदर वहां पे आईटीसी ऑटो अपडेट हो जाता है, हम कुछ करना नहीं है, वो ऑटो अपडेट हो जाता है। फिर इसका रिपोर्ट आप देख सकते हो, आईटीसी का समरी रिपोर्ट। सो करंट रिटर्न पीरियड में आईटीसी कितना क्लेम हुआ है और नॉट क्लेम कितना हुआ है करंट रिटर्न पीरियड में, उसका टैक्सेबल, उसका जीएसटी वैल्यू पूरा आ जाती है। साथ साथ क्लेम रजिस्टर भी यहाँ पर अवेलेबल है। यह है क्लेम रजिस्टर। सो अभी ये सारे है ना क्लेम रजिस्टर है, यहाँ पे सब कुछ क्लेम है, कितना क्लेम हुआ है, कौन सी परचेज बिल क्लेम हुआ है, तो वो हम जान सकते हैं। और साथ साथ अगर आईटीसी के रिलेटेड मैंने ये पहले भी दिखाया था आपको। सो आरसीएम कितना पे किया है, आरसीएम कितनी क्लेम किया है, ये भी हम रेफर कर सकते हैं। आईटीसी कितना क्लेम किया है, आईटीसी कितना यूटिलाइज किया है, ये भी हम देख सकते हैं। तो ये दोनों रिपोर्ट भी आईटीसी के रिलेटेड ही हम यूज कर सकता है। व्हाट टाइप्स ऑफ जीएसटी एडजस्टमेंट कैन बी ऑटो पोस्टेड। बीजी में कुछ ऐसा फीचर है कि ऑटो पोस्टिंग हो जाएगी। हम जीएसटी का एंट्री को है ना, जर्नल है ना, उसको ऑटो पोस्टिंग कर सकता है। वो है आरसीएम पेमेंट, आरसीएम को रेगुलर टैक्स की एडजस्ट करानी, और इनपुट को आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट करानी है, और क्रॉस एडजस्टमेंट करानी है, और टीडीएस को आउटपुट के साथ एडजस्ट करानी है, और टीसीएस को आउटपुट के साथ एडजस्ट करानी है, और रेगुलर जीएसटी गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है। तो ये सारे ऑटो पोस्टिंग ऑफ जर्नल्स हो जाएगी। एक छोटा सा आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। ये चीज आपको डिस्प्ले पे मिलेगा। डिस्प्ले के अंदर जीएसटी समरी रिपोर्ट होगी। जीएसटी समरी के अंदर हम डेट डालते हैं 30, फर्स्ट डेट लास्ट डेट डालते हैं। फिर आप ये देख सकते हो हमारी समरी रिपोर्ट के अंदर इनपुट जीएसटी का डिटेल भी आता है, आउटपुट जीएसटी का डिटेल भी आता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आरसीएम, रिवर्स, रिक्लेम, यहाँ पे सब कुछ आता है। जीएसटी पेएबल इतनी है। अब अगर मेरे को डेट चेंज करना है, यहाँ से मैंने डेट चेंज करूंगा। और अगर मेरे को जेवी डायरेक्ट ऑटो पोस्टिंग करना हो तो F4 करेंगे। F4 करके आरसीएम का पेमेंट, आरसीएम से रेगुलर इनपुट आउटपुट कुछ भी है तो यहाँ पे मैं जेवी पास कर सकता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्डली एक जेवी पास हो जाता है, उसका रेलेवेंट डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। तो ये एक तरीके से काम को कम करेगा, मतलब टाइम को आपको टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसके लिए। तो जर्नल सब कुछ ऑटो पोस्टिंग होने से आपका टाइम बच जाती है, नंबर ऑफ हावर्स, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये सारे इसका बिजी सॉफ्टवेयर का बेनिफिट है। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे इज द डिप्रिसिएशन एंट्री ऑटोमेटेड और डू आई नीड टू पोस्ट मैन्युअली। तो डिप्रिसिएशन आपको मैन्युअल नहीं करना है, क्योंकि एक बार हम फिक्स्ड एसेट्स का लेजर क्रिएट करके उसमें डिप्रिसिएशन रेट ऑफ परसेंटेज बता देते हैं, आइदर इन कंपनी एक्ट और इन इनकम टैक्स एक्ट। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका डिप्रिसिएशन का रिपोर्ट मिलती है। एवरी ईयर आपको WDV मेथड और SLM के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट करना पड़ेगा ना, वो आपको F4 शॉर्टकट की प्रेस करके डिप्रिसिएशन का जेवी पास कर सकते हो। तो ये डिप्रिसिएशन आपको बिजी में अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं अगर दिखाऊंगा डिस्प्ले में डिप्रिसिएशन चार्ट करके एक रिपोर्ट होगी। अभी फिलहाल इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कंपनी एक्ट चाहिए तो यहाँ पे कंपनी एक्ट को एनेबल करना पड़ेगा। फिर फिक्स्ड एसेट्स के अंदर परसेंटेज बतानी है, कितनी परसेंटेज है करके, और उसके अकॉर्डिंग हमारी डिप्रिसिएशन का चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। तो ये मेरा फिक्स्ड एसेट है, मशीनरी का फिक्स्ड एसेट है। आप देख सकते हो फाइनल वैल्यू कितनी है, 1,18,000 है। अब रेट ऑफ परसेंटेज यहाँ पे 0 है। अगर जीरो है तो उसको मैं रेट ऑफ परसेंटेज डालना हो तो यहाँ पे डाल सकता हूँ। एनुअल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितनी है, हाफ ईयरली कितनी है, कंपनी एक्ट के लिए कितनी डिप्रिसिएशन परसेंटेज है, वो पूरा डिटेल हम यहाँ पे बता सकते हैं।
फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी डिप्रिसिएशन का चार्ट बनेगी। तो यहाँ से F4 करेंगे, F4 करके जर्नल पास कर देते हैं। यहाँ भी हमारी जर्नल F4 करके पास हो जाती है। ऑल अकाउंट करना तो ऑल अकाउंट करेंगे। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, देखिए मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे डिफ्रिसिएशन मैंने नहीं लिया था, डिफ्रिसिएशन अकाउंट। वाउचर नंबर एक्चुअली ब्लैक है, क्योंकि ऑडिट ट्रायल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वाउचर नंबर ब्लैंक है, तो वो आपको वाउचर सेव नहीं होता है, तो इसलिए एरर मैसेज वहाँ पे आ रहा था। मैं वाउचर नंबर को अलो करूंगा, फिर दोबारा आपको पोस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से F4 करते हैं, सेलेक्टेड अकाउंट, प्लांट एंड मशीन, इसको डिफ्रेंशिएशन अकाउंट करते हैं। अब देखिए जर्नल पास हो जाता है। फिर ये वैल्यू आपका फाइनल रिजल्ट्स में भी शो करती है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर अगर देखनी हो तो यहाँ पे डिप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी है वो आ जाता है। मशीनरी का वैल्यू है 88,500। हाउ डज बिजी सिंप्लीफाई द रिकंसाइलेशन प्रोसेस फॉर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। यदि आपके पास क्लाइंट का कोई बैंक का स्टेटमेंट आता है ना, उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, और इंपोर्ट करने के बाद वहाँ पे कितनी सारी एंट्रियाँ होती है, वो सारे एंट्रियाँ बिजी में पोस्टिंग हो जाता है, वेदर इट इज़ अ डिपॉजिट अमाउंट और इट इज़ अ विड्रॉवल अमाउंट। तो बैंक स्टेटमेंट ऑटो इंपोर्ट भी कर सकते हो, प्लस वाउचर ऑटो क्रिएशन होता है, और रिकनसाइल भी ऑटो हो जाता है। तो ये काफ़ी सिंपल है बिजी के अंदर। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करके होगी। काफ़ी मेजर बैंक्स का स्टेटमेंट टेम्पलेट यहाँ पे रेडीली अवेलेबल है। अगर इफ इनकेस कोई टेम्पलेट क्रिएट करना हो तो कॉन्फ़िगर में जाके ऐड फॉर्मेट में जाके बैंक का नाम डाल देंगे, फिर एक फॉर्मेट बना देते हैं। सो यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर हम एक्सेल के अकॉर्डिंगली इसका कॉलम मैप करना पड़ेगा। ए में क्या है, बी में क्या है, उसका कॉलम मैपिंग करना है उसका कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। फिर वो फॉर्मेट यहाँ पे दिख जाती है, देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ से आपको एक्सेल का फाइल को चूज करना है। नीचे आपको एक्सेल फाइल चूज करना है, वेदर इट इज एक्सेल और गूगल शीट, दोनों में एक फाइल आप लेना पड़ेगा। लेके आपको डेटा को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने से पहले एक और चीज आपको करना पड़ेगा कि एक्सेल शीट नंबर, उस एक्सेल के अंदर कौन सी रो से डेटा शुरू होता है, एंडिंग रो नंबर क्या है वो बताना पड़ेगा जरूर। फिर जाके वो डेटा को इंपोर्ट करनी है। सो इंपोर्ट करेंगे तो डेटा पूरा आपका एक्सेल से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अगर इफ इनकेस कोई लेजर आपको मैप करना हो तो मैपिंग कर सकते हैं, ऑलरेडी क्रिएट हो तो। अगर क्रिएट नहीं हो तो यहाँ से F3 करके क्रिएट कर सकते हैं, तो क्रिएट करके मैपिंग कर सकते हैं। ये सब कुछ है ना, एक तरीके से ऑटोमेशंस आपको मिलती है। सो बिजी सॉफ्टवेयर को लेके आपका टाइम बच सकते हैं, मतलब आपका नंबर ऑफ हावर्स प्रोडक्ट यहाँ पे सेव हो जाती है, क्योंकि ये सारे एंट्रियाँ आपको मैनुअल करने का कोई नीड नहीं होती है। तो ये सारे बिजी में ऑटोमेशन अवेलेबल है। फिर जाके हमने वाउचर सेव कर देते हैं, अब वाउचर भी सेव हो जाएगा प्लस रिकंसाइलेशन भी हो जाएगा। सो हाउ डज रिपोर्ट्स कस्टमाइजेशन बेनिफिट अकाउंटेंट्स एंड सीएस। सो मोस्टली सीएस एंड ऑडिटर्स के लिए जैसे बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 का फॉर्मेट रिक्वायर्ड होती है अलॉन्ग विथ नोट नंबर। सो शेड्यूल 3 और शेड्यूल 6 और IFRS के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। साथ साथ बिजी में अगर कोई क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट डिजाइन करना हो तो कस्टम कॉलम और कॉलमनर रजिस्टर करके रिपोर्ट डिजाइनिंग यूटिलिटी भी है, तो ये भी हम यूज करके हमारे अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट को बना सकता है। तो ये काफ़ी सिंपल है चीज़ें। अब देख सकते हो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन होगी, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फाइनल रिजल्ट्स कॉन्फ़िगरेशन करके मिलेगा। फाइनल रिजल्ट्स पे आपके अकॉर्डिंग एक फॉर्मेट क्रिएट करना है शेड्यूल 3 शेड्यूल 6 करके, तब वो फॉर्मेट बना के उसके अंदर कॉन्फ़िगर्स कर सकते हो। मैं फिलहाल शेड्यूल 3 कर रहा हूँ तो शेड्यूल 3 लेता हूँ। यहाँ पर आपका जैसे रेशियो डिफाइन करना है और नोट नंबर डिफाइन करना है, नोट नंबर डिफाइन करना है, लेवल डिफाइन करना है, नहीं तो वैल्यू डिफाइन करना है, परसेंटेज डिफाइन करना है, कुछ भी हो तो आप यहाँ पे डिफाइन करिए, फिर ये सेव करिए। नेक्स्ट सेम एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस भी कर सकते हैं, और ये रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है फाइनल रिजल्ट्स के अंदर।
ऑलवेज आपको बिजी में तो देखिए रेडीमेड रिपोर्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो ऑलवेज रेडीली अवेलेबल है। इफ इन केस आपने कोई कॉन्फ़िगर करते हो तो ये आपको कॉन्फ़िगरेबल में मिलती है। कॉन्फ़िगरेबल में शेड्यूल 3, तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट दिखेगी। सो बैलेंस शीट दिखेगी, अगर वर्टिकल में देखना है तो वर्टिकल में देख सकते हैं। सेम आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी ऐसा ही होगा। फिर अगर कोई रिपोर्ट डिजाइन करना हो तो यहाँ से आपको कॉलमनर रजिस्टर करके एक रिपोर्ट ऑप्शन मिलेगा। रिपोर्ट डिजाइनिंग यूटिलिटी है, इसमें जाके नंबर ऑफ फॉर्मेट्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स ऐड कर सकते हैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग। और इसमें मैक्सिमम 32 कॉलम तक हम ऐड करें एक रिपोर्ट के अंदर। 32 कॉलम्स ऐड कर सकता है। ये क्या ऐड करना है आपको यहाँ पे ऑप्शन होगी। सो जैसे अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको फिल्टर यहाँ पे फील्ड अवेलेबल है, सेल्समैन, क्वांटिटी, रेट करके, तो उसको ऐड करेंगे, उसको कैप्शन डाल देंगे, फिर वो रिपोर्ट पे आ जाएगा। वैसे कस्टम कॉलम भी आपको मिल जाता है। हाउ डज बिजी क्विकली चेक द जीएसटी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस? यस, अगर आपका क्लाइंट का कोई जीएसटी का स्टेटस आपको जानना है, ट्रैक रिकॉर्ड जानना है, एक ही डैशबोर्ड के अंदर से आपको एक सिंगल बटन क्लिक करने से पूरा क्लाइंट्स का जीएसटी फाइलिंग स्टेटस दिखेगा। अगर आपका भी देखना हो और आपका कस्टमर का भी देखना हो, ये भी आपको देख सकता है। सो ट्रांजैक्टेड पार्टी का भी देखना है तो देख सकते हैं। ये चीज आपको काफी सिंपल है बिजी में। अगर ये हमारी कंपनी है, कंपनी के अंदर, तो ये कंपनी के अंदर आपको यहाँ पर जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी करके होगी, और उसमें चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस, एक पार्टी का, सभी पार्टी का और आपका खुद का। तो ये जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके नहीं देखते हैं, सीधा सीधा सॉफ्टवेयर से आपको पता चलता है कि किसने GSTR 1 भरा है, 3B भरा है, कब भरा है, वो स्टेटस आप जान सकते हो। अगर किसी का जीएसटी नंबर इनवैलिड है तो इनवैलिड करके यहाँ पे एरर दिखेगा। देख सकते हैं इतनी सारी पार्टियां हैं, इनका जीएसटी रिटर्न नॉट फाइल है। अब तो ये एक्चुअली यहाँ पे रेड में इसलिए आता है, इनका रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। अगर रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो रेड कलर में इंडिकेट करेगा, और उन पार्टी का प्राइलिंग फ्रीक्वेंसी, ये पूरा डिटेल आपके सामने शो होगा। नेक्स्ट, अगर हमारे क्लाइंट का कंपनीज होता है, मेरे एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे 50, 100 ऐसा कुछ कस्टमर का डेटा होती है, मैं सबका डेटा एक साथ भी वैलिडेट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है चेक रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। मेरे पास अगर 1000 कस्टमर है, 100 कस्टमर्स का डेटा है, और सबका डेटा एक साथ मैं यहाँ पे वैलिडेशन कर सकता हूँ। सो अब मेरे को पता चलेगा यहाँ से इस डैशबोर्ड के अंदर कि किस पार्टी का रिटर्न फाइलिंग हुआ है, नहीं हुआ है। 3B कब हुआ है इनका? 20th को हुआ है। GSTR 1 तो 9/5/25 को हुआ है। इस कंपनी का GSTR 1 9/5 को लास्ट टाइम हुआ है, और 3B तो 25 को हुआ है। तो ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमारे क्लाइंट्स का डेटा के अंदर हम जान सकते हैं कि इनका रिटर्न फाइलिंग नहीं हुआ है क्या और हुआ है क्या। ये जानने के लिए ये डैशबोर्ड प्रोवाइड किया गया है। तो कैन बिजी हेल्प मी ऑटोमेट द एंट्री ऑफ रिकरिंग एक्सपेंसेस लाइक रेंट, यूटिलिटीज और सैलरीज? सो बिल्कुल ये भी हो जाएगी। बिजी में वाउचर एप्लीकेशन करके एक यूटिलिटी है। वाउचर एप्लीकेशन से हम एक सिंगल एंट्री एक मंथ में बना लिया, फ्यूचर मंथ में उसी एंट्री को हम रेप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे रेप्लिकेशन का मतलब एक एंट्री भी हो सकती है, मल्टीपल एंट्रीज भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ बुक्स कीपिंग और बाय द एक्सपेंस पेमेंट्स का हम उसको एवरी मंथ हम उसको एंट्री नहीं करते हैं, पहले मंथ करेंगे और नेक्स्ट मंथ वो ऑटो पोस्टिंग हो जाता है। तो ये चीज करने के लिए हम यहाँ पे एक यूटिलिटीज प्रोवाइड किया हुआ है, उसको हम एक बार देखते हैं। जैसे बल्क अपडेशंस के अंदर वाउचर एप्लीकेशन, तो ये वाउचर एप्लीकेशन में हम सिंगल वाउचर डिफरेंट अकाउंट्स, सिंगल वाउचर डिफरेंट डेट्स, नहीं तो ऑल वाउचर इन पर्टिकुलर डेट, 3 तरीके यहाँ पे कर सकते हैं। और ये हमारी टेम्पलेट है, टेम्पलेट यहाँ से क्रिएट कर सकता है। सो टेम्पलेट क्रिएट कर सकता है यहाँ पे। अगर एक एंट्री को लेके हमने टेम्पलेट बना लिया, दिस एंट्री, और उस टेम्पलेट का नाम है टेस्ट। अभी टेस्ट के नाम पे एक टेम्पलेट बनी हुई है, और इस टेम्पलेट को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और डेट बतानी है, कौन सी डेट को इस एंट्री को हम रिपीट एंट्री करना है, मतलब रेप्लिकेट करनी है, और किस अकाउंट के लिए करना है, उस अकाउंट के नाम और उस अकाउंट का ग्रुप भी ले सकता है। सो अकाउंट ग्रुप लेने से सारे अकाउंट ग्रुप, मतलब वो जो संडे डेबिटर हो, क्रेडिटर हो, उसके अकॉर्डिंगली वो पोस्टिंग हो जाएगी। मतलब वो नंबर ऑफ कस्टमर्स मैंने कितना लिया हूँ वहाँ पे, तो वो फॉर एग्जाम्पल अभी ये डेबिटर है, सारे डेबिटर है, इसमें से मैंने 2 पार्टी का नाम लेता हूँ, फिर इसको रेप्लिकेट करता हूँ,
अब देखिए रेप्लिकेशन हो गया, मतलब एक एंट्री करके हम उसको मल्टीपल डेट में, डिफरेंट डेट में मल्टीपल पार्टी के नाम पे पोस्टिंग कर सकता है। आइदर इट इज एक्सपेंसेस और इट इज अ परचेज एंट्री हो सकती है, सेल एंट्री हो सकती है, और एनीथिंग इट माइट बी। सो ये है रेप्लिकेशंस। हाउ डज बिजी हैंडल डेटा इंपोर्ट फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर? एक्चुअली डेटा माइग्रेशन, अगर कस्टमर्स, आपका कोई क्लाइंट कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करा होगा, हो सकता है टैली, हो सकता है मार्ग, और एनी अदर सॉफ्टवेयर। If they are using tally, so we can migrate the data from tally to busy very easily, और mark to busy, ये भी हमारे पास एक यूटिलिटी है। तो उस यूटिलिटी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में कंपनी प्रोवाइड करेगा। तो ये यूटिलिटी को आप इंस्टॉल करना है, फिर डेटा को माइग्रेट कर सकते हो। यदि कोई दूसरे सॉफ्टवेयर है टैली मार्क के बिना, तो फिर आप एक्सेल से कर सकते हो। सीधा एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट करिए उस पुराना उसका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर से, और बिजी में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर बिजी टू बिजी करना है, क्लाइंट भी बिजी यूज करेगा, आप भी बिजी यूज करेगा, तो बिजी टू बिजी एक्सएमएल एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये काफी सिंपल स्टेप है। तो इन चीजों को कराने के लिए आपको देखिए टैली टू बिजी के लिए इस तरीके से एक यूटिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे वाउचर भी इंपोर्ट होगा, मास्टर भी इंपोर्ट होगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यूटिलिटी है टैली टू बिजी। सो यहाँ पे वाउचर भी इंपोर्ट होता है, मास्टर भी इंपोर्ट होता है, ठीक है। और टैली प्राइम, प्राइम से इंपोर्ट होगा, टैली प्राइम से, ठीक है। टैली प्राइम से सीधा डेटा माइग्रेशन हो जाएगा। सिर्फ हम उस कंपनी को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करना है, फिर ट्रांसफर करना है। तो इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, और अकाउंट मैपिंग भी करना पड़ेगा कि मेरा टैली में क्या अकाउंटिंग ग्रुप है, और ये सेम अकाउंटिंग ग्रुप बिजी में भी होनी चाहिए, तभी उस लेजर के बैलेंसेस पूरा माइग्रेशन हो जाता है। फिर मार्क टू बिजी कर सकते हैं, नहीं तो एक्सेल में भी कर सकते हैं, तो एक्सेल में भी कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा इंपोर्ट ऑप्शन है, इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल। हमारा अगर सेल वाउचर को इंपोर्ट कराना हो तो सेल्स वाउचर, परचेस है तो परचेस, पेमेंट रिसिप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कुछ भी है तो पूरा आपको इंपोर्ट हो जाती है। लेकिन हम पहले एक टेम्पलेट को बना के रखना है। टेम्पलेट में हम बताना पड़ेगा कि मेरा एक्सेल के अंदर कौन सी कॉलम में क्या डेटा है, ये में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, ये पूरा हमारे एक्सेल का कॉलम है। अब ये एक्सेल कॉलम में एक कॉलम पे सीरीज है, बी कॉलम पे डेट है, सी कॉलम पे नंबर है। तो ये पूरा हमने मैपिंग करानी है यहाँ पे। उस मैपिंग को करा के हम यहाँ से सीधा एक्सेल फाइल को लेके इंपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर एक्सेल में कोई शीट नंबर होता है 1 2 3 4, तो शीट नंबर बताएंगे, स्टार्टिंग रो नंबर बता देंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे। फिर ये भी हमारे काम ईजी हो जाएगा, नंबर ऑफ हावर्स हमें बच सकता है। तो ये एक एडवांटेज है बिजी का। बिजी के अंदर जैसे मल्टीपल वेज है डेटा माइग्रेशन कराने के लिए। और एक और चीज मैंने आपको बताना चाहिए था, जैसे बिजी टू बिजी माइग्रेशन। सो बिजी टू बिजी माइग्रेशन आपको सिंपल है, एक्सएमएल से हो जाता है। अगर आपके पास बिजी है, क्लाइंट के पास बिजी है, डेटा को एक्सपोर्ट करानी है, ट्रांजैक्शन को एक्सएमएल के रूप में, एक पर्टिकुलर मंथ को लेना है यहाँ पे डेट रेंज के अकॉर्डिंग, फिर एक एक्सएमएल फाइल आता है, उसको लेके आके बिजी के अंदर इंपोर्ट करानी है। यहाँ पे दोनों है, एक्सपोर्ट भी है, इंपोर्ट भी है। तो एक्सपोर्ट भी है, इंपोर्ट भी है। देखिए एक्सपोर्ट भी है, इंपोर्ट भी है। कैन बिजी हैंडल टीडीएस एंड टीसीएस? ऑफ कोर्स। सो टीडीएस ई रिटर्न, टीसीएस ई रिटर्न, ये भी बिजी में हम कर सकते हैं। टीडीएस टीसीएस का मल्टीपल सेक्शंस होती है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस है, वो सारे बिजी में है। और सैलरी है, नॉन सैलरी है, दोनों टीडीएस का रिलेटेड हमने ई रिटर्न कर सकता है। और टीडीएस का कैलकुलेशंस ऑटो अप्लाई हो जाएगा बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो ये सारे बिजी में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टीडीएस टीसीएस का रिटर्न प्रिंट, ईमेल, एसएमएस मेनू होती है, उस पर मिल जाएगी ई टीडीएस रिटर्न करके। ई टीडीएस रिटर्न यहाँ से होगा। फॉर्म 26Q, फॉर्म 26Q अनेक्शर, फिर ई टीसीएस रिटर्न का 27EQ। तो ये सारे यहाँ पे बनेगी। व्हाट अबाउट द डेटा सिक्योरिटी इन बिजी? सिक्योरिटी एक्चुअली इज अवर पैरामाउंट, बिकॉज हमने सॉफ्टवेयर के अंदर से यूज़र कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। अगर यूज़र लेवल कंट्रोल चाहिए तो मतलब ये हम सेट कर सकते हैं किस यूज़र को क्या करानी है। फिर ऑटो बैकअप का सुविधा है। सो अगर हमारे क्लाइंट का डेटा है कंप्यूटर में, तो सारे क्लाइंट का डेटा एक साथ बैकअप हो जाती है, इंडिविजुअल बैकअप हम लेने का ज़रूरत नहीं रहेगी। सो डेटा सेफली सिक्योरली गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज सिस्टम में भी स्टोर कर सकता है। फिर बाइंडिंग डेटा का प्रोविजन भी है। अगर
ऑडिटर के पास डेटा होगी, वो डेटा किसी के पास अगर मिसयूज नहीं होना चाहिए, वो डेटा थेफ्ट नहीं होना चाहिए, तो हम लॉक करके रख सकते हैं हार्ड डिस्क नंबर के साथ। उस डेटा को लॉक कर सकते हैं ताकि ऑडिटर के बिना कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को डेटा जाता है तो ओपन करके नहीं देख सकता है, वो डेटा ओपन नहीं होता है। तो वार्निंग अलार्म्स का सिस्टम भी है। जैसे अगर हमारे पास नेगेटिव स्टॉक्स, नेगेटिव बैलेंसेस, कुछ जीएसटी इनवैलिड रहेगा, एचएसएन इनवैलिड रहेगा, क्रेडिट लिमिट एक्सीड होगा, तो ये केस में काफ़ी सारे सिनेरियो होती है, तो उस केस में वार्निंग्स अपीयर होता है। सो वार्निंग सिस्टम है, वार्निंग अपीयर होता है। सो बेस्ट सॉल्यूशन फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑटो बैकअप, गूगल ड्राइव, यूजर रोल एंड परमिशंस, डेटा फ्रीजिंग करके है। डेटा फ्रीजिंग का मतलब अगर हमने कोई डेटा को ऑडिट करा, फिर जाके कंपनी के कोई यूज़र जाके उस डेटा को डिस्टरबेंस नहीं करेगा, क्योंकि वो डेटा लॉक रहता है। हम किसी भी एक पर्टिकुलर डेट के अनुसार उसको डेटा लॉक कर सकते हैं, सो ऑडिटिंग के बाद। तो ये क्या होगा, आपको दोबारा करने का नीड नहीं होती है। अगर इफ़ इन केस कोई यूज़र जाके उसको डिस्टर्ब करेगा तो हमको वापस काम आ जाता है। तो ये हमने उसको अवॉइड कर सकते हैं। डेटा फुल और पार्शियल फ्रीजिंग कर सकते हैं। ब्रांच वाइज जीएसटी रिपोर्ट्स भी इंक्लूड रहते हैं बिजी में। अगर हमारे मल्टी लोकेशंस के अंदर ब्रांचेस है, डिफरेंट स्टेट में ब्रांचेस है, तो डिफरेंट स्टेट का डेटा को सिंक करा के एक सिंगल लोकेशन में हम बैठ के उस डेटा का फाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको जीएसटी रिपोर्ट मिल जाती है बिजी में। फिर सारे जीएसटी का रिपोर्ट है, सो यहाँ पे आपको